Assalamu alaikum and a very warm welcome to everyone. I am Samana Batul, a third year medical student at Dow Medical College, Karachi, and I'll be hosting today's session on the basics of research. We are really glad to have such a diverse audience with us today. We have students from medical, allied health sciences, engineering, arts, and more. Most of them are just beginners in the research, while a few of them already have some intermediate level experience. And that's exactly what makes this session inclusive for everyone. It's a real honor to welcome our guest speaker, Dr. Raza Sayed, an experienced educationist with over 2 decades of work across various sectors. Dr. Raza Sayed holds a PhD in democratic education with academic roots in both Aga Khan University and University of Cambridge. His work is deeply inspired by the philosophy of Dr. Allama Iqbal, especially of reconstructing ideas. So, without taking more time, I would invite Dr. Raza Sayed to begin this session. Over to you, sir. Thank you. हाँ जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। First of all, I would like to thank Zain bhai and all of the participants over here in this session to organize this session and inviting me in this session on this topic. So the topic which was given to me was regarding regarding research, and I've been told that majority of the students who will be attending will be from medical background. So it was a bit tough decision for me because my background is from social sciences. So research in the paradigm of social sciences is altogether a different thing when you talk about the natural sciences. Gee, am I audible? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। बाकी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने माइक्स का खुद ख्याल रखिए, वरना बार बार डिस्टरबेंस होती रहेगी और हमें रुकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, प्लीज़ कंटिन्यू। Gee, so what I thought was, although I have a medical background as well, I graduated as a veterinary doctor in 2004. But it's been around 20, 21 years that I'm out of that profession and I'm working in the field of education. So what I thought was having a philosophical background, why not to go on discussing this research topic in a broader perspective with some philosophical touch in it. So while introducing the participants of this session right now, one of our, the moderator told that currently we have students from diverse background in this session. So I think this session will be quite helpful in this regard. So if you have any question till now, you can go on asking the question. Otherwise, I'll start my presentation. Ji. Doctor, go ahead. We have to start. Okay. Okay. So I titled today's discussion as the layered discovery of reality, from the tangible to the transcendent. And this is a philosophical journey into the tools of human inquiry. Whenever we are talking about research, obviously we are talking about human inquiry. And human inquiry is an innate sort of an ability which humans are born with. And what do I mean by layered discovery of reality? अगर आप में से कोई इस टाइटल के ऊपर कोई कमेंट देना चाहे या इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो यू गाइस आर वेलकम जी। लेयर डिस्कवरी ऑफ रियलिटी, टेंजिबल टू ट्रांसेंडेंट, क्या इससे पहली नजर में आप क्या ग्रैस्प कर रहे हैं? एनीवन इफ he or she likes to share his or her ideas. अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि जो डिस्कवरी हुई है हज़रत आदम से लेके अभी तक, वो स्टेप बाय स्टेप हुई है, डायरेक्टली नहीं हुई। तो लेयर डिस्कवरी यानी स्टेप बाय स्टेप चीजें अनक्लोज होती जा रही हैं, तो शायद यही हो। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। एनीवन एल्स? ठीक है, लेट्स कैरी ऑन।
तो thank you for helping me out. Although this point was not in my mind when I was writing this topic, but you are very right. हम इसको ह्यूमन हिस्ट्री के लॉन्गिट्यूडल उसमें भी देख सकते हैं. तो लेयर डिस्कवरी क्यों मैंने कहा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स डाइव इनटू दिस प्रेजेंटेशन. So first, human quest for reality. So when we are talking about research, तो हम इस बात को देख रहे हैं कि ह्यूमंस जो है वो शुरू से ही, जब से इंसान ने इस दुनिया में आंख खोली है, वो चाह ये रहे हैं कि रियलिटी को अनवेल करें. रियलिटी ने हमेशा उनको अपनी तरफ दावत दी है, और परवरदिगार कुरान में भी इस तरफ दावत देते हैं. और शुरू में हमने जो आयत देखी कि वी विल शो देम आवर साइंस इन द horizons and within themselves until it becomes clear to them that it is the truth. तो परवरदिगार ने इन सारी निशानियों को बनाया हुआ है ताकि इंसान जो है वो बिलाखिर उस हकीकत की तरफ मुतवज्जे हो सके जो इंसान को उसके बेहतरीन और आला तरीन अहदाफ से जोड़ती है. यानी मेरा खुद नेचुरल साइंसेस का बैकग्राउंड रहा, और आई बीन स्टडिंग नेचुरल साइंसेस फॉर 24 years. मगर किसी ने भी इन 24 सालों में इस तरफ मुतवज्जे नहीं किया कि हम जो इस कदर खूबसूरत चीजें देखते हैं रियलिटी नेचर की, खुदावंद करीम की खिलकत की इतनी खूबसूरत चीजें देखते हैं, कभी माइक्रोस्कोप के अंदर, कभी अपनी आंख से, नेकेड आई से. तो वो सारी चीजें ऐसी हैं जो इंसान को मुतवज्जे करती हैं, इंसान को किसी खालिक की तरफ, उसकी खूबसूरती जो है वो इंसान को किसी एक हकीम जात की तरफ मुतवज्जे करती हैं. मगर यह है कि कभी भी 24 सालों के अंदर किसी उस्ताद ने कम से कम इस तरफ मुतवज्जे नहीं करवाया कि आप ये देखें कि ये किस कदर यानी अगर ये इतनी हसीन है तो बनाने वाला किस कदर खूबसूरत होगा. इंसान की तबीयत में ये है कि उसके अंदर क्यूरोसिटी पैदा होती है. जब भी वो ऑब्जर्वेशंस करता है, ऑब्जर्वेशंस में उसे हैरत अंगेज चीजें नजर आती हैं, तो ही और शी स्टार्ट थिंकिंग कि भाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. इस जर्नी जो जर्नी है, इसको हम तीन चीजों से ताबीर कर सकते हैं. ऑब्वियसली क्यूरोसिटी, रीजन एंड फेथ. एंड डिलिबरेटली आई हैव बीन एडिंग फेथ ओवर हियर, और लेटर हम इसको देखेंगे बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन कि व्हाई आई हैव बीन एडिंग फेथ ओवर हियर. अच्छा, अब ये कहाँ से आती है? मैं बहुत कट शॉर्ट करता हूँ बिकॉज दिस इज नॉट द कोर टॉपिक विच वी आर टॉकिंग अपॉन. तो इंसान की रूह के अंदर एक सलाहियत है जिसे हम कहते हैं सवाल करने की हिस्स, यानी कि क्यूरोसिटी. एक सलाहियत है इंसान के अंदर जिसे हम कुव्वत है, जिसे हम कहते हैं आकिला. और वो कुव्वत जो है वो बेसिकली अक्ल को सोचने पे मजबूर करती है, उसके अंदर क्यूरोसिटी पैदा करती है ताकि वो सोचे. तो रूह के अंदर ये जो सलाहियत मौजूद है, परवरदिगार की जात ने इन्नेट एक क्वालिटी रखी है, उसकी वजह से इंसान सोचता है. उस क्यूरोसिटी में ही ट्राई टू थिंक अबाउट रीजन. रीजन इटसेल्फ इज गॉड. मैंने बहुत ही इख्तिसार के साथ एक जुमला कहा जिसको आप, अगर आपको उस पर एतराज हो एंड यू हैव अ कमेंट ऑन इट, तो यू कैन पार्क द कमेंट एंड वी विल बी टेकिंग द कमेंट्स एट द एंड ऑफ द सेशन. मगर ये है कि मैंने बहुत ही डेलिबरेटली इस बात को कहा कि रीजन खुदा है. यहां मैं खुदा को रिप्लेस नहीं करना चाह रहा रीजन से. इस बात को याद रखिएगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि अगर रीजन मौजूद है तो वी डोंट नीड गॉड. मैं ये कह रहा हूं कि रीजन और गॉड एक चीज है, यानी वो उसके वजूद से है. तो जब वो उसके वजूद से है तो कॉज एंड इफेक्ट जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो लामोहाला वो कॉज एंड इफेक्ट को एक कॉज और एक इफेक्ट के दरमियान रिलेशनशिप को भी उसी की जात बाकी रखे हुए है. और अगर उसकी जात और उसका इरादा बाकी ना रहे तो वो जो कॉज एंड इफेक्ट के अंदर जो रिलेशनशिप पाया जाता है, वो रिलेशनशिप भी वहां पे लूज हो जाएगा. इसीलिए मैंने इसको खुदा से ताबीर किया. एंड ऑब्वियसली इफ यू आर लुकिंग एट क्यूरोसिटी एज एन इननेट एबिलिटी ऑफ आवर सोल एंड रीजनिंग एज अ रिलीजन, तो ये दोनों चीजें फिर फेथ के साथ जुड़ जाती हैं. तीसरे पॉइंट की तरफ आता हूं कि एवरी न्यू डिस्कवरी अनवील्स डीपर लेयर ऑफ ट्रूथ. अच्छा, अब इसको मैंने लेयर क्यों कहा है, इसको हम आगे चल के देखते हैं. मगर रियलिटी की क्वेस्ट कहीं खत्म नहीं होती. यानी मैं अगर बहुत ही आमियाना लहजे में इस बात को समझाने की कोशिश करूं तो एक जमाने में एक ड्रामा सीरियल आता था, उसका नाम था शब देख. और उसमें एक डॉक्टर होता था. अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ, बल्कि आप लोगों की एज नहीं है, आपने देखा नहीं होगा, तो आप इसको नेट पे जाके जरूर सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा. और उसमें कैरेक्टर होता था डॉक्टर टंगड़ा.
और डॉक्टर टंकरा जो था उसका एक तकिया कलाम था, वो ये कहता था कि हर चीज की तह में एक बात होती है और वही तो असल बात होती है। तो हम भी देखते ये जा रहे हैं कि जैसे जैसे इंसान रियलिटी को, और अभी हमारी एक स्टूडेंट जो है यहाँ पे पार्टिसिपेंट है, उन्होंने बहुत शुरू में अच्छा शेयर किया कि आदम से लेके आज तक डिस्कवरीज हुई चले जा रही हैं, एंड वी आर गोइंग डीपर एंड डीपर, और ये क्वेस्ट जो है वो खत्म होने को नहीं आती। जैसे इल्म की प्यास नहीं बुझती, वैसे ही ये लेयर्स भी खत्म नहीं होती, और हम डीपर से डीपर ट्रूथ की तरफ जाते जाते हैं। इसीलिए मन अरफा नफ्सो फारा फारा पहू, वो वाली बात भी आपके ज़हन में है कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। और सोक्रेटिस भी यहाँ पे ये कह रहा है कि द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। क्यों? क्योंकि ये इननेट एबिलिटी है इंसान की, और अगर इंसान अपनी इस इननेट एबिलिटी को छोड़कर एक ऐसी लाइफ अपना लेता है जिसके अंदर वो अनएग्जामिन्ड लाइफ गुजारता है, जिसमें उसके अंदर कोई क्वेस्ट नहीं है, उसके दाएं बाएं में होने वाली चीजों के बारे में वो सोचता नहीं है, और गौर व फिक्र नहीं करता, और क्वेश्चंस नहीं उठाता, और उन मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा, तो दैट लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। Acha, moving on to the next point, the mind's power of abstraction. So we need to understand that how our mind works. This is too important. आप ये देखें कि क्योंकि मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है और मुझे इख्तिसार से गुजरना है, तो अगर कोई क्वेश्चन कहीं रह जाए और आप समझे कि कोई बात जो है वो स्किप हो गई है या क्लैरिटी नहीं आई, तो यू कैन पार्क द क्वेश्चन एंड हम उसको लेटर विल एलैबोरेट दैट थिंग। सो हमारे दिमाग की एक सलाहियत ये है कि वो एब्स्ट्रैक्शन करता है। यानी जब भी हमारा जहन किसी भी रियलिटी की किसी भी फॉर्म के साथ, किसी भी लेयर के साथ इंटरेक्शन में आता है, तो वो उसकी एब्स्ट्रैक्शन करने की कोशिश करता है। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। जैसे कुर्सी, हम देख रहे हैं, कोई भी कुर्सी आपके सामने अगर हो तो आप उसे देख सकते हैं। तो एक कुर्सी का वजूद है जो कि एक्सटर्नल खारजी वजूद है, जो कि आपको नजर आ रहा है, और उसकी अपनी खास डायमेंशंस, एंड यू कैन गो ऑन चेंजिंग द डायमेंशंस बाय ऑर्डिनरी मीन्स। तो उसकी वो डायमेंशंस हैं, उसने एक स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, और वो एक रियलिटी है जिसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते। अच्छा, मैं फिर वही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ यू गो ऑन स्विचिंग ऑफ योर म्यूट योर माइक्स प्लीज, बिकॉज दैट कॉजेज द डिस्ट्रप्शन विद इन द लेक्चर। मुझे डिस्ट्रप्शन से एतराज नहीं है, बट मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ कि मुझे लगता है जैसे कोई सवाल आया है, तो वो हम फिर रिजर्व कर लें। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो वो माइक ओपन करके क्वेश्चन शेयर करें, अदरवाइज वी शुड कीप आवर माइक्स म्यूट। तो अब जेन के अंदर जो हमने कुर्सी देख ली, कुर्सी देखने के बाद उसका एक खारिजी वजूद है, वी कैन नॉट गो ऑन ऑल्टरिंग दैट एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस ऑफ दैट चेयर। देयर इज अनदर एग्जिस्टेंस ऑफ दैट चेयर व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड इन आवर ब्रेन। वही उसकी वो तस्वीर जो है, वी हैव टेकन दैट थिंग, और हमने दिमाग के अंदर उसकी एक तस्वीर बना ली है। ये वाली तस्वीर जो है, ऑब्वियसली ये उसी तरह की है, मतलब अगर इफ यू टॉक इन द फॉर्म ऑफ इन द सेंस ऑफ फॉर्म, तो उसकी फॉर्म वही फॉर्म है जो कि एक्सटर्नल फॉर्म है, मगर इसका वजन नहीं है। इसको यू कैन गो ऑन चेंजिंग इट्स डायमेंशंस इन योर माइंड। आप अपने दिमाग में उसकी एक टांगे लंबी करना चाहें, उसको बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, आप सभी अपने दिमाग की इमेजिनेशन के अंदर कर सकते हैं। तो आपने किया ये कि आपके दिमाग में एक्सटर्नल एक ऑब्जेक्ट का एक इंटरनल इमेज बना लिया, यानी उसकी एब्स्ट्रैक्शन कर ली, और एब्स्ट्रैक्शन करने के बाद उसका एक ऐसा एग्जिस्टेंस क्रिएट कर लिया है जिसको वो अपने दिमाग के अंदर जिस तरह चाहे चेंज कर सकता है। बट देयर इज एन अदर लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एज वेल, और वो एब्स्ट्रैक्शन की लेयर ये है कि इफ आई आस्क यू to define this chair in the terms of words, no picture over here, no colors, no attributes, no size. You have to define it in the form of in the form of words. एक उसकी डेफिनेशन लिखें इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। ऑब्वियसली आप उसकी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेफिनेशन लिखने जाएंगे विच वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड्स, एंड देयर विल बी नो फिजिकल एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्वड विद दैट। हाँ, हो सकता है यू कैन गो ऑन डिफाइनिंग सम ऑफ द फिजिकल एट्रीब्यूट्स, मगर वो एट्रीब्यूट्स अपने एग्जिस्टेंस में उस तरह नहीं है जिस तरह एक्सटर्नल चेयर के अंदर है। तो आपने देखा कि एट द थर्ड लेयर आवर माइंड हैज कन्वर्टेड दैट चेयर इनटू एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। तो ये मैं यहाँ पे आपसे गुजारिश करना चाह रहा था कि हमारी एक माइंड की एबिलिटी को हम शुरू में समझ लें, कि हमारी माइंड की एबिलिटी जो परवरदिगार ने हमें दी हुई है वो है कि हम चीजों को उनकी फॉर्म से एब्स्ट्रैक्ट करके उनकी प्योर रियलिटीज की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। सो फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड वी डिराइव इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट्स लाइक जस्टिस, टाइम एंड ब्यूटी।
इसी तरह जस्टिस, टाइम एंड ब्यूटी, ये वो इंटेंजिबल किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं, दे आर व्हिच आर नॉट टेंजिबल, बट वी एक्चुअली डिराइव इट फ्रॉम आवर सोसाइटी और आवर फिजिकल वर्ल्ड. So abstraction helps us connect the dots to build a unified worldview. यहाँ जो बात मैं क्रॉस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि बेसिकली रियलिटी डिफरेंट लेयर्स में है, जैसे हम अगली स्लाइड में देखेंगे. मगर वाई टू गो ऑन नोइंग इट डीपर एंड डीपर, बिकॉज ये जितनी लेयर्स होती हैं रियलिटी की, we go on connecting these layers, connecting these dots to make a comprehensive picture out of it. हम उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बनाते हैं, हम डीप थिंकिंग के अंदर जाते हैं, भी हम उसमें से पैटर्न्स तलाश करते हैं, ये भी हमारे ज़हन की सलाहियत है. और उन पैटर्न्स के बिहाफ में हम क्या करते हैं कि हम एक एक जितना भी नॉलेज हमारे पास है, वी गो ऑन कनेक्टिंग ऑल दी डॉट्स टुगेदर टू मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर आउट ऑफ इट, जिस कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ के ऊपर हम अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, सॉरी, जिस कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी के ऊपर हम अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और वही हमारा वर्ल्ड व्यू होता है. तो परवरदिगार कुरान में फरमाते हैं कि वेरीली इन द क्रिएशंस ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ आर साइंस फॉर दोज हु रिफ्लेक्ट. सो रिफ्लेक्शन इज इंपॉर्टेंट. सो आप मुमकिन है कि हम रिसर्च में इस बात को समझें कि हम साइलोज में रिसर्च को होल्ड करें, कि रिसर्च एग्जिस्ट इन साइलोज, और हम किसी एक प्रॉब्लम पे गौर कर रहे हैं, और उसका हमने जो भी अननोन था वो मालूम कर लिया, एंड वी हैव रीच्ड टू सर्टेन लेयर्स ऑफ इट्स रियलिटी. और उसके बाद हम कहें कि हाँ, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो जो पहले रिसर्च थी वो अलग थी, ये अलग थी. और इंटरडिसिप्लिन भी कोई चीज नहीं है. मिसाल के तौर से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिलीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट social aspect of life, and I'm talking about medical, I'm talking about engineering or whatsoever. तो इन चीजों का आपस में कनेक्शन नहीं है. पता नहीं क्यों इंसान ऐसा पैदा तो नहीं होता. माइट, आई मीन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ आवर करप्टेड एजुकेशन सिस्टम्स. हम इतना ज्यादा चीजों को कैटेगराइज कर देते हैं, पार्टीशंस में ले जाते हैं, उनको हम अलग अलग बॉक्सेस और अलग अलग खानों में रख लेते हैं कि वी कैनॉट, आई मीन, वी समटाइम्स लूज द एबिलिटी टू connect dot across different concepts of different, I mean, disciplines, and come up with a single concept of truth, reality, or life. तो इस चीज को हमने, मैं मिसाल आपको ये देता हूँ कि फॉर एग्जांपल, इफ इंजीनियर्स जो हैं, इफ अ मैथमेटिकल इक्वेशन इज डिसबैलेंस्ड, तो वो चीज क्या होगी, वो आपको तंग करेगी ना. जब भी आप उसे देखेंगे, वो हमेशा आपको तंग करेगी. जब भी आप उसे नजर डालेंगे, वो आपको डिस्टर्ब करेगी. सिमिलरली दोज, आई मीन, द मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि केमिस्ट्री को, बायोकेमिस्ट्री और इन चीजों को देखते हैं, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं. तो इफ यू लुक एट एन इक्वेशन विच इज नॉट बैलेंस्ड, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपके अंदर एक खलबली मच जाएगी कि ये बैलेंस क्यों नहीं है, एंड यू विल फील एन अर्ज टू गो एंड बैलेंस दैट इक्वेशन और टू सॉल्व इट, ताकि उसकी राइट लेफ्ट साइड बराबर हो जाए. सेम इज द केस फॉर द सोशल साइंस स्टूडेंट्स. अपनी सोसाइटी के अंदर ये हम सब के लिए, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट गजा दीज डेज. जो कुछ वहां पे हो रहा है, हमारी हमारी तबीयत बेचैन हुई है. और उस बेचैनी की वजह क्या है? उस बेचैनी की जो वजह है बेसिकली वो यही है कि जब हम उसे देखते हैं तो हमें ब्यूटी डिस्टर्ब नजर आती है. इक्वेशन, जस्टिस, दूसरे लफ्जों में आप कह लें, वो हमें वहां पे डिस्टर्ब दिखाई देता है. सो द ब्यूटी इज मिसिंग, और वो ब्यूटी जो मिसिंग होती है उसकी वजह से हम अपने अंदर एक बेचैनी सी पाते हैं, एंड वी स्टार्ट फीलिंग एन अर्ज विद इन आवरसेल्व्स कि हम किसी तरह कोई किरदार अदा करें टू रीबैलेंस दैट, आई मीन, दैट ऑकवर्ड सिचुएशन. तो इसीलिए परवरदिगार ने कहा कि वो साइंस फॉर दोज हु रिफ्लेक्ट. अगर हम रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट ड्राइंग conclusions out of that, we are not, I mean, comparing the patterns with each other and taking out some conclusions out of it, तो there is no reason for having our research in silos. हाँ, कोई एक छोटा प्रॉब्लम हम जरूर सॉल्व कर लेंगे, but we will not be able to go and have a bigger picture of life and reality for us. इसी तरह all men by nature desire to know. अब इसमें कोई कैद नहीं है कि आप ये कहें कि मैं एक डिसिप्लिन का हूं तो मेरा मेरा दूसरा डिसिप्लिन जो है वो मेरा फील्ड नहीं है. So third slide, I think, deals with the nature of reality. So I've titled this slide as multi-layered reality. Why I have titled it like this? Because reality is not considered to be one-dimensional. रियलिटी मैं क्यों कह रहा हूँ वन डायमेंशनल नहीं है?
तो लेट मी शेयर एन एनालॉजी विद यू, ताकि मुझे उससे मदद मिले और मैं फिर इसको थोड़ा सा आपके लिए सॉल्व कर सकूं। एक ज़माने में मैंने एक एनालॉजी बनाई थी। कराची में यूनिवर्सिटी रोड है। अगर आप जो कराची वाले हैं वो बेसिक वो आजमन उसे जानते होंगे, यूनिवर्सिटी रोड पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी उसी रोड के ऊपर है। सो मैंने ये बनाया कि फॉर एग्जांपल एक शख्स जो है वो यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर है। अब मुझे सही से याद नहीं है, मेरा ख्याल है ये 10 से 11, 7 या 10-11 किलोमीटर लंबी सड़क है। अगर एक बंदा यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, और वो ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, और यूनिवर्सिटी रोड पे एक्सप्लोर कर रहा है, तो अगर आप उससे पूछेंगे कि हाउ रियलिटी इज, तो वो ये कहेगा इट्स एवर चेंजिंग, ये हमेशा चेंज हो रही है। हर वक्त हर लहजा जो है ना, इसमें एक नई आन शान है और एक नई आबोताब है इसकी। मगर अगर कोई शख्स आसमान में बैठा हुआ है, लेट्स से एट अ पोजीशन ऑफ अ सैटेलाइट, और वहां से उससे कहा जाए कि तुम बताओ कि यूनिवर्सिटी रोड कैसी है, तो वो कहेगा ये एक स्टैग्नेंट स्टैटिक लाइन है जो कि एब्सोल्यूट है, नेवर चेंजिंग है। अब दोनों एक ही रियलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास टाइम कम है, वरना आई वुड लव टू मेक दिस सेशन इंटरैक्टिव, और यहाँ मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता ताकि आप इसमें शामिल हो जाए, मगर मुझे आई एम फीलिंग लाइक कि हमारे पास कंटेंट थोड़ा ज्यादा है एंड वी आर लैकिंग बाय टाइम। तो अब बात यह है कि अगर आप जो यूनिवर्सिटी रोड पे चल रहा है बंदा, और वहां पर रियलिटी का वो वाला पर्सपेक्टिव देख रहा है, उससे अगर आप पूछेंगे कि यूनिवर्सिटी रोड तो बिल्कुल एक स्टैटिक है, वो चेंज तो नहीं हो रही, तो वो कहेगा ये बात गलत है, जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है, मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ ये चेंज हो रही है। और वो शख्स जो सेटेलाइट की लोकेशन पे बैठा है और वहां से देख रहा है, उससे अगर आप कहेंगे कि यूनिवर्सिटी रोड जो है ये तो एवर चेंजिंग है, बिल्कुल हर वक्त इसका एक नया चेंज, और इसमें बिल्कुल रिलेटिव है, और ये नई नई चीजें इसमें चेंज हो रही है, इट्स नॉट स्टैटिक, तो वो कहेगा ये बात गलत है, ये बात गलत है, ये बिल्कुल स्टैटिक है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये स्टैटिक है। और तीसरा ऑब्जर्वर अगर दोनों को देख रहा हो, उससे आप पूछेंगे तो इनमें से कौन कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है, तो तीसरा ऑब्जर्वर क्या कहेगा कि दोनों अपनी जगह सही कह रहे हैं। क्यों दोनों अपनी जगह सही कह रहे हैं? क्योंकि वो जिस पर्सपेक्टिव से उस रियलिटी को देख रहा है वो एवर चेंजिंग है, और दूसरा जिस पर्सपेक्टिव से उस रियलिटी को देख रहा है वो स्टैटिक ही है। तो मैं आपसे गुजारिश यही करना चाह रहा हूँ कि रियलिटी एग्जिस्ट इन लेयर्स, इसीलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि इट्स नॉट यूनिडायमेंशनल, इट एग्जिस्ट इन लेयर्स। सो अगर हम ये कहें कि ये मोनोप्लिसिट है और ये बिल्कुल वहदत रखती है, तो वो बात भी अपनी जगह सही है। और अगर हम ये कहें कि ये कसरत रखती है, तो ये बात भी अपनी जगह सही है। और ये दोनों कॉन्सेप्ट्स ऑफ वहदत और कसरत, दे कैन होल्ड along with each other. Apparently they look opposite to each other, but we can hold both the concept together without any destruction, और आप समझ लें कि opposition, if we are looking to both the perspective from a third perspective, जो दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है। तो मैं इसलिए आपको कहना चाहूंगा कि रियलिटी जो परवरदिगार खुद इसमें हदीस कुदसी में परवरदिगार ये फरमाते हैं कि मैं अकेला था, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं, और फिर उसने परवरदिगार ने अपनी जात का इजहार किया। और मुल्ला सदरा की अगर हम फिलोसफी को देखें तो वो यही बात बयान कर रहे हैं कि बिलाखिर वो वजूद खुदाबंदी जो है इट ट्रांसेंडेड फ्रॉम आलम उकूल से आलम मिसाल, और आलम मिसाल से आलम तबीयत के अंदर आ चुका। बस हमने यहाँ पे जब लेयर्स बनाई तो हमने यहाँ 3-4 लेयर्स को हमने यहाँ मेंशन कर दिया। सो द टेंजिबल, द लोएस्ट वन, जिसे परवरदिगार भी कहता है कि इन्ना खलकनल इंसाना मिन फी आसानी तकवीम, और हमने इंसान को, बेशक हमने इंसान को जो है बेहतरीन तकवीम पे पैदा किया, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, और फिर हमने इसे पलटा दिया पस से पस चीज की तरफ। ये पलटाना क्या है? ये वजूद है जो पस से पस चीज की तरफ आ गया हुआ है, यानी इस टेंजिबल और एम्पिरिकल वर्ल्ड के अंदर आ चुका हुआ है, एंड नाउ इट हैज टू ट्रांसेंड बैक, और इसने वापस जाना है। वो डिसेंड हुआ था पहले, नाउ इट हैज टू ट्रांसेंड बैक, जहां पर वो टेंजिबल वर्ल्ड से आलम मिसाल के अंदर और आलम मिसाल से आलम उकूल के अंदर जाएगा। सो मैंने यहाँ पर जो चीजें की, थोड़ा सा डिसिप्लिन को कंसिडरेशन में लेते हुए, सो टेंजिबल एंड एम्पेरिकल जो कि आप देख रहे हैं, एंड देन सम रियलिटीज आर सोशल विच वी क्रिएट सोशली, और वहां पर दे आर नॉट स्ट्रेट लाइक, आई मीन उसमें आप पॉजिटिविस्ट पर्सपेक्टिव नहीं अपना सकते, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात,
तो अब नियतों पे अगर अमल का दारोमदार है, तो अब ये इंसान फिर जब जाहिरन दिखने वाले एक ही जैसे काम कर रहे हो, मगर दो इंसानों की नियतें अगर मुख्तलिफ हैं, तो द रिजल्ट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। तो लिहाजा में ये बात समझ में आना शुरू हुई कि सोशल रियलिटीज आर नॉट दैट पॉजिटिविस्ट जितना कि हमारी नेचुरल रियलिटीज होती हैं। इससे ऊपर अगर हम चले जाएं, तो वी एंटर इनटू अ रीम ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच इज कॉन्सेप्चुअल। मैथमेटिक्स हमें हेल्प करती है हमारी एक्सपेरिमेंटेशन में भी, जो हमारी टेंजिबल वर्ल्ड है, मगर इसके साथ साथ मैथमेटिक्स जो है वो हमें मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स तक भी जाने की कोशिश मदद करती है। जैसे कि आप मैथमेटिक्स में यू कैन गो ऑन कैलकुलेटिंग एन डायमेंशंस व्हिच आर नॉट आई मीन प्रैक्टिकल पॉसिबल एम्पेरिकली, और उसके बाद फिर ये है कि टेंजिबली पॉसिबल नहीं है। फिर ये है कि क्वांटम फिजिक्स और ये सारी चीजें जितनी हैं, इसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे भी। तो ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम इनकी रियलिटी को डिस्कवर कर सकते हैं। एंड फोर्थ लेयर जो मैंने बनाई है वो मेटाफिजिकल एंड स्पिरिचुअल है। मेटाफिजिकल और स्पिरिचुअल जो है उसमें वी टेक हेल्प ऑफ लॉजिक, फिलोसफी। आई मीन ऑब्वियसली फिलोसफी ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, प्लस देयर इज अनदर रील्म जो कि हमारी पर्सनल ह्यूमन एक्सपीरियंस की रील्म है, जिसको हम इल्हा शहूद कहते हैं। सो इसको भी हम आगे चल के थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो ईच लेयर रिक्वायर्स यूनिक tools of inquiry, but all together work in harmony. This is the important thing. I mean, to keep the interconnectivity of all these layers is very important. ये वो बारीक सा कनेक्शन है इन तमाम लेयर्स के दरमियान, विच वी शुड टेक अ स्पेशल केयर ऑफ, एंड वी शुड कीप दिस कॉन्टेक्ट, दिस कनेक्शन इंटैक्ट। अगर हमने इस कनेक्शन को तोड़ दिया ना, तो फिर रियलिटी पीसेस में बंटना शुरू हो जाएगी, और हम एक होलिस्टिक जो व्यू है रियलिटी का उसको नहीं पा सकेंगे। सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द थिंग कि आप किस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। आर यू सोशल साइंस स्टूडेंट और मेडिकल साइंस स्टूडेंट और इंजीनियरिंग स्टूडेंट? ऑब्वियसली आपको अपनी फैकल्टीज पे काम करना है, सो दैट यू कैन गो ऑन हैविंग अ बिगर पिक्चर ऑफ दिस ऑफ रियलिटी। सो अब मैं थोड़ा सा सो वी आर हाफ वे, तो मैं इसको थोड़ा सा अब, चूंकि मेरे ख्याल में बेस में मुकदमा इसका बना चुका हूँ और मुझे अब ज्यादा दिक्कत नहीं चाहिए, तो मैं जरा जल्दी गुजरूंगा अगली स्लाइड से, ताकि हम आखिरी एक दो स्लाइड्स पे थोड़ा वक्त ज्यादा लगाएंगे, एंड देन वील मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। तो अब बात ये कि एम्पेरिकल रियलिटी आप जानते हैं, फाइव सेंसेस हमारा टूल है। वी ऑपरेट ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, मेथड इज एम्पिरिसिज्म, साइंटिफिक मेथड, डोमेन्स आर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड नेचुरल साइंसेज ऑल। सो क्या ये दुनियावी चीजें हैं, या इसका इलाहियात से भी कोई ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। परवरदिगार फरमा रहा है, एंड डू नॉट परस्यू दैट ऑफ विच यू हैव नो नॉलेज, इंडीड द हियरिंग, द साइट एंड द हार्ट, अबाउट ऑल दोज विल बी क्वेश्चन्ड। सो परवरदिगार कह रहा है कि मैंने आपको इंपेरिकल टूल्स दिए हैं टू 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 डिस्कवर द रियलिटी, ताकि आप क्वेस्ट करें रियलिटी की, और यू कैन गो ऑन अनकवरिंग द रियलिटी। इसको मैं इकबाल की एक बहुत प्यारी फारसी नज़म है, गजल है, जिसमें इकबाल आफरीनी आदम पे बात कर रहे हैं, और वो इस तरह शुरू करते हैं, नारिज़ात इश्क पे खूनी ने जिगरी पैदा शुद, हुस्न लर्जीद के साहिब नजरी पैदा शुद, के इश्क ने नारा लगाया ऊंची कि खूने जिगर वाला पैदा हो गया है, हुस्न लरजना शुरू हो गया, कि नजर रखने वाला पैदा हो गया है। और फिर इकबाल कहते हैं कि अब मुझे उसका पहला मिसरा याद नहीं आ रहा, दूसरा मिसरा ये है कि हदर पर्दगियान पर्द दरी पैदा शुद, कि अब पर्दे में छुपने वाली हकीकतों बचो, कि पर्दे चीरने वाला पैदा हो चुका है। तो ये वो बेताब किस्म की एक 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 रूह परवरदिगार ने पैदा कर दी है, जो खुद सोज है, जो खुद गर है, जो खुद को खुद तोड़ती है, खुद बनाती है, खुद जलाती है, खुद बढ़ाती है, खुद उठाती है। ये वो इस किस्म की रूह पैदा हो चुकी हुई है, कि जो अब इंक्विजिटिव किस्म की रूह है। इसीलिए शुरू में आपने वो प्लेटो का वो भी देखा, एरिस्टोटल का, कि अगर कोई इंक्विजिटिव नहीं है, तो वो लाइफ जो है वो वर्थ लिविंग ही नहीं है। बस हम यहाँ पर देख रहे हैं कि परवरदिगार भी फरमा रहा है, और परवरदिगार ये भी नहीं फरमा रहा कि मैंने तुम्हें आंख, कान और दिल दिए हैं
यानी समात दी है, बसारत दी है और तुम्हें एक दिल दिया है, दिल उसी लिए ताकि वी कैन गो ऑन ड्राइंग आउट डीपर मीनिंग्स आउट ऑफ इट और कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग आउट ऑफ इट। तो आगे वो ये कह रहा है कि अबाउट ऑल दोज विल बी क्वेश्चन, ये तफरी के लिए नहीं है, इस पे मैं तुमसे सवाल करूंगा। सो मतलब ये नहीं है कि इट्स नॉट ऑप्शनल, यानी हम ये कहेंगे ठीक है खुदा ने दिए हैं मगर ये कि इख्तियार है हमारा, हम करें ना करें, ना ना ना, खुदा करे हाँ इख्तियार तुम्हारा है, तुमने जैसे करना है करो, बट यू विल बी क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिया। जैसे हमें ये पता लगता है कि एम्पिरिकल टूल्स इलाही टूल्स हैं। So if we are using empirical tools in medical science or natural sciences and subjects like these, so we don't consider it as a temporal sort of contemporary sort of tools जिसका कोई इलाहियात या मजहब से ताल्लुक नहीं है। नहीं, ये वो टूल्स हैं जिनके बारे में खुदा ने कहीं फरमा रहा है कि मैं तुमसे सवाल करूंगा। और एडम स्मिथ फरमाते हैं कि साइंस इज द ग्रेट एंटीडोट टू द पॉइजन ऑफ enthusiasm and superstitions। ऑब्वियसली जज्बाती रवैयों से और तोहिमात, उनके खिलाफ साइंस जो है वो एक बहुत बड़ा एंटीडोट है। और इसको भी आप यू कैन गो ऑन लुकिंग एट दिस कोट इन रिलीजियस सेंस एज वेल, क्योंकि इस्लाम जिहालत का दीन नहीं है। और अगर मक्के में भी इस्लाम आया था तो उसने तोहिमात और जिहालत का खात्मा किया था। और इस्लाम रैशनैलिटी का दीन है, इस्लाम कॉजैलिटी का दीन है। तो इन सब चीजों के अगेंस्ट जो चीज भी जाएगी वो ऐसा नहीं है कि मॉडर्न साइंस के खिलाफ जा रही है, कन्वेंशनल साइंस के खिलाफ जा रही है, नहीं, वो रूह दीन के खिलाफ जा रही है। सो टॉकिंग अबाउट सोशल रियलिटीज टूल्स, क्वालिटेटिव मेथड, सर्वे, एथनोग्राफी, केस स्टडीज, ये जितने कॉजा एक्सपेरिमेंट्स या आपके क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी है, मैं इसकी भी डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज वी आर कवरिंग दिस टॉपिक फ्रॉम अ फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव, सो नो नीड टू गो डीपर इनटू मेथोडोलॉजीज। और आप यू कैन गो ऑन सर्चिंग ऑन द इंटरनेट, अब तो इतने टूल्स हैं कि यू कैन figure out what these things mean. Reality is constructed through collective human behavior. So this is also a reality. ये मैं आपको मतलब अपने मुतालियात के नतीजा जो अर्ज करूँ आपकी खिदमत में, रियलिटी सिर्फ और सिर्फ मावराए मादा नहीं है। वही हकीकत जब डिसेंड करके टेंजिबल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आती है तो वो यहाँ आने के बाद बहुत ही मल्टीप्लिसिट किस्म के रूप धार लेती है। और वो जो रूप वो धारती है वो खुद भी रियलिटी है, उनकी कोर रियलिटी है। सो इंसान जिसे परवरदिगार ने खलीफा मुकर्रर किया है अपना, उसको परवरदिगार ने बहुत सी अथॉरिटी दी है। और बहुत सी अथॉरिटी देने के बाद मैं इसको एक एग्जाम्पल के जरिए से वाजे करने की कोशिश करूंगा। आपको मालूम है पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज जितनी बनती हैं, दे 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 नीड टू अर्न अ चार्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। और ये चार्टर जो है उन्हें नेशनल या प्रोविंशियल असेंबली से मिलता है। सो व्हेन असेंबली अप्रूव्स द चार्टर, दैट द चार्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी बिकम्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद उसका जो सिंडिकेट बोर्ड होता है वो जो भी डिसीजन ले रहा होता है वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो उसका पार्ट बन रहे होते हैं। सो इन वन सेंस पार्लियामेंट, अब कौन सी पार्लियामेंट बैठी हुई कैसी बैठी है, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट थिंग। आई एम थ्योरेटिकली स्पीकिंग, जो पार्लियामेंट जो कि नुमाइंदा है पूरी एक जमहूर का, वो उनको ऑथराइज करती है कि आपका सिंडिकेट जो डिसीजन लेगा, ऑब्वियसली उसके अंदर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, we'll consider it as the charter of Pakistan. So you have been given the authority to become part and write the charter of Pakistan. So इसी तरह एक रिसर्चर भी होता है। एक रिसर्चर जब वो अपने ड्यू प्रोसेसेस को पूरा करता है और रियलिटी को किसी भी लेवल पे डिस्कवर करने की कोशिश करता है, सो इफ ही इज कॉम्पिटेंट इनफ एंड ही इज फॉलोइंग द ट्रू प्रोसीजर, अपनी बायसेस को हटा के, तो परवरदिगार उसको एक अथॉरिटी देता है कि मैं तेरे बनाए हुए नॉलेज को अपना सब नॉलेज कंसिडर करूंगा कि यू हैव क्रिएटेड अ रियलिटी। और इसको इकबाल इस तरह कहते हैं कि परवरदिगार ने कायनात को नातमाम क्यों छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है ताकि ऐ इंसान तू उसे ऐसे बना जैसा तू चाहता है, और इस दौरान तेरे अपनी इनर सेल्फ भी डेवलप हो जाएगी। ऑब्वियसली व्हेन यू विल बी फाइटिंग द नेचुरल फोर्सेस और द मेटाफिजिकल फोर्सेस और द सोशल फोर्सेस और द इकोनॉमिक फोर्सेस, जो भी फोर्सेस हैं हमारी सोसाइटी के अंदर या मिसाल के तौर से नेचर के अंदर जो भी हैं, उनसे जब आप फाइट करेंगे तो ऑब्वियसली इन रिटर्न आपका इनर सेल्फ डेवलप होगा, एंड जो उसका बैरूनी फायदा है वो ये होगा, यू विल बी
एबल टू शेप द यूनिवर्स एज यू वांट, जिसका परवरदिगार ने इंसान को इख्तियार दिया हुआ है। तो मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि सोशल रियलिटीज भी इंसान कंस्ट्रक्ट करता है, और वो रियलिटीज जब इंसान कंस्ट्रक्ट करता है, क्योंकि नेचुरल साइंसेस की तरह बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये रियलिटीज जब इंसान कंस्ट्रक्ट करता है, और मैं नहीं कह रहा कि सारा का सारा इंसान कंस्ट्रक्ट करता है, कुछ ट्रांसेंडेंटल लॉज भी हैं जो इनको गवर्न करते हैं, बट विद इन दोज लॉज और समटाइम्स चेंजिंग दोज लॉज एज वेल, इंसान जो है वो उसको गवर्न करता है, और इंसान क्रिएटर हो जाता है रियलिटी के एक पार्ट का। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आई मीन डिस्कशन है। तो इसके अंदर हम स्टैटिस्टिक्स का सहारा भी लेते हैं सोशल साइंसेस के अंदर, और स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमें सोसाइटी की रियलिटीज को कंस्ट्रक्ट करने की में मदद देता है, और बहुत सारी रियलिटीज को जानने में मदद देता है। अब चूंकि टाइम ज्यादा नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग डीपर इनटू इट। आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह तौर पे फरमा रहे हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, इसका मतलब सोशल रियलिटीज में नीयतें बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। एंड अपेरेंटली if you are looking at two similar sort of acts, but their intentions are different, obviously the results will be different and they are not identical. So they are two different realities. तो इस चीज को भी देखने की जरूरत है, और लैंग्वेज इसी के अंदर आती है। और लैंग्वेज में मैं यही कहूंगा कि लैंग्वेज इज अ टूल, जो कि नुत्क की सलाहियत परवरदिगार ने इंसान को दी हुई है, जिससे यू कैन गो ऑन क्रिएटिंग द रियलिटीज। इसीलिए कहते हैं रीबर्थ नहीं करनी चाहिए। इसीलिए अब मिसाल ये है कि अगर एक चीज रियलिटी नहीं है और आप एक अंदाजा लगा के रियलिटी को क्रिएट करें और एक फैब्रिकेटेड रियलिटी को बार बार दोहराएं, तो दैट विल बिकम अ स्टैंडर्ड रियलिटी फॉर एवरीवन। और उसके बाद क्या होगा, उससे अगली चीज आप करने में चले जाएंगे, तो वो एक फैब्रिकेशन की स्टार्ट हो जाए। इसीलिए कहते हैं जब आपके पास कोई खबर पहुंचे, तो अगर तस्दीक के बगैर आप आगे बढ़ा रहे हैं तो आप भी उस झूठ में शामिल हैं, बिकॉज इसी क्योंकि आप रियलिटीज क्रिएट कर रहे हैं। एंड इट इज अ ग्रेट सॉर्ट सेंस ऑफ, आई मीन वन शुड maintain a great sense of responsibility about what you are speaking, because what you speak, Allah has given you the ability to create realities with your tongue. So always be aware of your tongue, how and where you are using it. तो ये मैंने इसको बैन कर दिया। मैन इज बाय नेचर अ सोशल एनिमल, सो ऑब्वियसली वी कैन नॉट लिव विदाउट द सोसाइटी। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैथमेटिक्स। So it is a sort of a bridge between two realities, physical and metaphysical. Mathematics का physical world experimentation में बहुत ज्यादा रोल है। कोई भी क्रिएशन, चाहे वो मकान की क्रिएशन हो, चाहे वो बायोलॉजिकल क्रिएशन हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, वी कैन नॉट गो ऑन डूइंग एनी क्रिएशन विदाउट मैथमेटिक्स। इसी तरह अगर हम एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटम फिजिक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट आई मीन कॉस्मोलॉजी, जो चीजें बियॉन्ड आर विजुअल रेंज हैं उनके बारे में। सो मैथमेटिक्स इज अ गुड टूल जहाँ पे वी कैन क्रिएट अ रियलिटी इन द मैथमेटिकल वर्ल्ड, और वहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, विद द हेल्प ऑफ दोज वेरिएबल्स वी कैन गो ऑन फाइंडिंग द अननोन वेरिएबल्स, अननोन रियलिटीज। इसी तरह प्योर मैथ है, एब्स्ट्रैक्ट के साथ डील करता है, आइडियलाइज्ड ट्रूथ बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, नंबर थ्योरी और ये सारी चीजें। Applied math helps model both physical and social realities, tools of transition from empirical to metaphysical. Obviously, empirical से metaphysical की तरफ भी रेंज करता है, और यूज ऑफ फिजिक्स में आप मसलन बहुत सारे यूजेस अभी भी देख रहे हैं। तो गलीलियो जो है वो ये कहता है कि द बुक ऑफ नेचर इज रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज हमारे मजहबी स्कॉलर्स में से भी कुछ अफराद ये आवाज उठा रहे हैं कि कुरान इज दी, I mean, Arabic is the theoretical language of God, and mathematics is the practical language of God, जिससे परवरदिगार क्रिएट करता है। So God's language of creation is mathematics, and you can go on visualizing this thing. I mean, in a very comfortable way, क्योंकि nothing can be created without using mathematics. और परवरदिगार कुरान में भी फरमा रहा है कि हमने हर चीज का ऐसा आदाद में कर रखा है। तो परवरदिगार ने अगर हर चीज का ऐसा आदाद में करके रखा हुआ है, तो this, I mean, some of the numbers we know, and there are certain numbers which we do not know right now, but everything, even if it is emotions or if it is tangible, intangible, or whatsoever it is, so it can be quantified into numbers. And what sort of numbers are that मेरी फील्ड भी मैथ्स नहीं है, वो मैथ्स वाले ज्यादा बेहतर बताएंगे, बट आई हैव अ सर्टेन क्लू अबाउट एंड गेस अबाउट दिस थिंग कि ऑब्वियसली बहुत सारे मसला आगे जाके मैथ्स कुछ फजी लॉजिक्स में चेंज हो जाता है, और इस तरह म्यूजिक इज एडवांस फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। यू आर क्वांटिफाइंग फीलिंग्स इनटू नोट्स, इनटू फ्रीक्वेंसीज, इनटू एम्पलीट्यूड्स एंड
into these sort of things. तो इससे अगर हम आगे बढ़े तो मैथमेटिक्स को हमने देख लिया कि ये खुदा की खिलकत की जबान है, और then is the I mean then we come across the higher realities beyond time and space realities. ये beyond time and space realities भी हमारे पास हैं. So we have quantum physics, relativity, multiverse theory, deal with dimension beyond sensory experience. माशाल्लाह हमारे जैन भाई जो हैं वो क्वांटम फिजिक्स में काफ़ी दिलचस्पी भी रखते हैं और ये तुला रखते हैं, और मैं भी इनसे अपने शगफ और अपनी, आप समझ लें, बिसात के मुताबिक कुछ इस्तेफादा करता रहता हूँ. So mathematics is essential in theorizing these. Obviously, all these sort of theories we cannot go on theorizing these concepts, these abstract sort of concepts without the help of mathematics. And experiments often only validate abstract mathematical predictions. और इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज. ये एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पे फिर वो इमेजिनेशन आ जाते हैं, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन आप जानते हैं कि ही वाज हिमसेल्फ अ फिलोसॉफिकल फिजिसिस्ट. तो आप कितने डीपर मीनिंग्स निकाल के लाए. एक कन्वेंशनल, मतलब जीनियस ब्रेन, एक कन्वेंशनल फिजिक्स को ऑल टुगेदर चेंज करके रख दिया एंड रिलेटिविटी का एक नया बाब खोल के रख दिया. सो हम ये देख रहे हैं कि ये आहिस्ता 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 वी आर गोइंग टुवर्ड्स ट्रांसेंडेंटल सॉर्ट ऑफ और मेटाफिजिकल सॉर्ट ऑफ रियलिटीज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम टेंजिबल. अब हम प्योर मेटाफिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट इंक्वायरीज की तरफ आ गए, जो लॉजिक, फिलॉसफी, एक्सप्लोर रियलिटी not confined by matter. So there are certain realities which are beyond our imagination and beyond our physical senses as well. और उसको हम फिर लॉजिक के जरिए से, फिलॉसफी के जरिए से, रैशनैलिटी के जरिए से हम उसे बिल्ड करने की कोशिश करते हैं. सॉरी, हम अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं हाउ दैट रियलिटी इज. मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी से आगे दे कीप ऑन working hard and hard, and they keep on putting their efforts into it in a right way, or they start entering into another realm of reality where we do not perceive or think reality, where we don't access reality with our intellect, but there is a superlative form of or a super form of intellect जहाँ पे we go on seeing the reality itself. So हम शुजात को सोचते नहीं है, हम शुजात को देखते हैं, हम इल्म को देखते हैं, हम 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 नज़ाफत को देखते हैं, हम हकीकत को देखना शुरू कर देते हैं, जो शहूद के एक पर्सपेक्टिव है. और इकबाल के बकौल वो शहूद का पर्सपेक्टिव जो है, दैट इज अ प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ रैशनैलिटी. सो यू कैन नॉट एंटर इनटू द रील्म ऑफ शहूद विदाउट रैशनैलिटी. जो भी शहूद में विदाउट रैशनैलिटी एंटर होने की कोशिश करेगा, वो अपनी शहूद में गलतियां जरूर करेगा. सो एवरीथिंग इज अ प्रॉपर वे, जिस प्रॉपर वे के जरिए से वी एंटर इनटू दैट सॉर्ट ऑफ अ वर्ल्ड. अब इसमें इस्लामिक फिलोसफर्स बहुत सारे हैं. आपने 3 मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स हमारे पास हैं. सो वी हैव पेरिपेटेटिक्स, जो जिनको मशाई कहते हैं. वो रैशनैलिटी के बहुत स्ट्रिक्ट रैशनल होते हैं. फिर एक हमारे पास जो है वो तशरीह आते हैं, जो कि फ़िक़्ह और इन चीज़ों से ज़्यादा जुड़ते हैं. वो कहते हैं कि नहीं, इबादत और ये चीज़ों पे फोकस ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इसके ज़रिए से हम रियलिटी, या कलामी कहते हैं हम उनको, वो कहते हैं कि कुछ बेसिक रियलिटीज़ को आप तस्लीम कर लें थ्रू रिलीजन, उसके बाद सोचना शुरू करें, नहीं तो आप गुमराह हो जाएंगे. और फिर एक स्कूल ऑफ थॉट हमारे पास जो है वो इशराकी आता है. वो कहते हैं कि हकीकत को आप अक्ल के ज़रिए या इन चीज़ों के ज़रिए दर्क नहीं कर सकते, बल्कि हकीकत को दर्क करना है तो आप अपने कल्ब को पाक करें. जितना आपका कल्ब पाक होगा, उसके अंदर वो रियलिटीज़ खुद ब खुद जलवा करोगे, एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द रियलिटीज़. एंड देयर इज़ अ फोर्थ पर्सपेक्टिव जिसको हम ज़्यादा इंडोर्स करते हैं, वो मुल्ला सदरा का पर्सपेक्टिव है, व्हिच एंड्स अप यूनिफाइंग ऑल दीज प्रायर स्कूल्स ऑफ थॉट्स. तो ये स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो थे, ये क्लेम जो करते थे, इनके एक दूसरे पे एतराज़ात भी थे. एंड मुल्ला सदरा केम अप विद एन आइडिया, जिसके बाद उसने इन सारी गुत्थियों को सुलझा दिया, एंड दे स्टार्ट यूनिफाइंग all these concepts, start unifying into a single harmonically into a single school of thought. अच्छा, तो अब परवरदिगार वाज़ेह तौर पे फरमा रहे हैं कुरान में कि there is nothing like unto him and he is all hearing, all seeing. अब देखिए ना, ये फिर एब्स्ट्रैक्ट की बातें हो रही है. पहले परवरदिगार आपको क्या मिसालें दे रहे थे? तुमने आसमान को नहीं देखा, तुम दिखाओ इसमें कोई नक्श नजर आता है, और तुम्हारी निगाह पलट के आ जाएगी और तुम्हें कोई नक्श नजर नहीं आएगा. कौन है जो इन पहाड़ों जैसी कश्तियों को चलाता है? वो दाना जैसे तुम जमीन में बोते हो, तुम उगाते हो या हम उगाते हैं. वो बादल जिनसे पानी बरसते हो, तुम बरसाते हो, हम बरसाते हैं. वो लकड़ी जिससे तुम आग निकालते हो और फायदा हासिल करते हो, तुम उसे जलाते हो या इसको जलाने वाले हम हैं. So all those were tangible sort of examples. But
at once. But what is happening in other verses of Quran is परवरदिगार हमें मुतवज्जे कर रहा है. He is the all hearing, all seeing, abstract किस्म की realities की तरफ मुतवज्जे कर रहा है. So हमने देख लिया कि reality layers के अंदर पाई जाती है और these thing operates in this way. अच्छा, फिर गजाली कह रहे हैं डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है. एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डाउटिंग योर ओन कॉन्सेप्ट्स और दी अदर्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ अदर्स, आप इल्म आगे बढ़ नहीं सकता. एंड ऑल फिलॉसफी बिगिंस इन वंडर. ऑब्वियसली कंफ्यूजन क्रिएट होता है एक चीज में. इंसान रियलिटी को परसीव करने की कोशिश कर रहा होता है, उसको लॉजिकल जो एक प्रोसीजर होता है उसमें फैलेसीज दिखाई दे रही होती हैं, उसमें गैप्स दिखाई दे रहे होते हैं, वो मुतवज्जे होता है. वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सम न्यू आइडियाज और उससे नई रियलिटी जो है वो क्रिएट होती चली जाती है. सो समरी करूंगा और उसके बाद एक और मेरे पास स्लाइड है, उस पर 5 मिनट लगा के फिर आई विल बी मूविंग ऑन टू क्वेश्चन आंसर सेशन, अगर कोई क्वेश्चन हुए तो. अच्छा, उसके बाद मैं इसकी समरी आपको ये बयान करूंगा कि हमने देखा लेवल्स ऑफ रियलिटी. सो इन द फर्स्ट कॉलम यू कैन गो ऑन सीइंग द लेवल्स ऑफ रियलिटी. सो वी हैव टेंजिबल, सोशल, मैथमेटिकल एंड मेटाफिजिकल. अच्छा, ये कोई बहुत ही हार्ड एंड फास्ट किस्म की चीज नहीं है. मेरे पास आ रहा है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, आई डोंट नो. तो मेरा ख्याल नहीं, मेरा आपकी मेरी आवाज आ आवाज रही आपको है, ठीक है, मसला नहीं. ठीक है, थैंक यू. अच्छा, सो टेंजिबल, सोशल, मैथमेटिकल एंड मेटाफिजिकल. सो अब इसमें हमने ये देखा कि जो हमारा टेंजिबल रील है, एंड दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड एंड दे ऑल आर द लेयर्स ऑफ सेम रियलिटी. सही है. और कंबाइंडली दे आर कॉल्ड अ रियलिटी. आप इसको टुकड़ों में नहीं देख सकते. दे आर लाइक एन ऑर्गेनिक होल. और इस ऑर्गेनिक होल को अगर आप टुकड़ों में तोड़ेंगे तो वो टोटल रियलिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी. बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक मुर्गी को पकड़ के अगर आप 4 टुकड़ों में तोड़ देंगे तो 4 मुर्गियां नहीं बन जाएंगी, वो एक भी नहीं रहेगी. बिकॉज इट इज एन ऑर्गेनिक होल, सो यू कैनॉट गो ऑन डिवाइडिंग ऑर्गेनिक होल फिजिकली. तो इसी तरह ये हमारे पास रियलिटी की 4 लेयर्स भी हैं. So senses and experimentation is the tool for tangible, and it mainly applies in the field of natural sciences. And then comes the social realm, and social realm में observation and statistics हमारी help करते हैं, and social sciences हमारे पास मौजूद हैं. And then comes the mathematical logic equations, maths and physics, और वो जो complex physics है उसको भी हमने देखा. And then comes the realm of metaphysics and reason and revelation. इसको मैं यहाँ लेके आया. और philosophy और theology is there to solve our प्रॉब्लम सॉरी. तो ये वो चीज हमने इसकी देख लिया. अच्छा, नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, मैंने वहां पे हमने रेवलेशन को थोड़ा सा टच किया था. हियर आई हैव ब्रॉट आई मीन स्पेसिफिकली रिटन रेवलेशन इन द फील्ड ऑफ मेटाफिजिकल, इन द रील्म ऑफ मेटाफिजिक्स. और उसके बाद ये है कि हम फिलोसफी और थियोलॉजी से इसको डील कर रहे हैं. इस पे मुझे थोड़ा सा आपके साथ 5-1 मिनट और लगाने हैं. एंड होपफुली विल बी एंडिंग आवर सेशन बाय 9:55 और 56. तो फिर विल बी मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन. ओके, अब देखें स्टेटस ऑफ रेवलेशन क्या है. आयतुल्लाह जवादी अमली से अगर पूछा जाए कि स्टेटस ऑफ रेवलेशन क्या है, तो आप ये फरमाते हैं कि ऐसा नहीं है कि अक्ल बमुकाबला वही है. आपकी तवज्जो चाहूंगा बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम. मैं इसको एलेबरेट भी नहीं कर पाऊंगा, इसको रिपीट भी नहीं कर पाऊंगा. तो वही कहते हैं कि इट इज नॉट द मैटर ऑफ हैविंग रैशनैलिटी वर्सेस वही रेवल्यूशन. क्यों? क्योंकि रैशनैलिटी खुद रेवल्यूशन के अंडर ऑपरेट करती है. हत्ता कि एम्पिरिकल रैशनैलिटी जिसे आप एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं, वो भी रेवल्यूशन के अंडर ऑपरेट करती है. सो रेवल्यूशन इज एट द टॉप, वही सबसे ऊपर है. और उसके नीचे हमारे पास कुछ जो है वो तरीकाकार है रैशनैलिटी के. रैशनैलिटी के अंदर वो हमने देख लिए सारे, वो 4 की 4 लेयर्स मिलाकर रैशनैलिटी के ऊपर ऑपरेट कर रही होती हैं. तो वो हमारे पास वो सारी जो रील्म्स आ रही हैं, दे वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ वही एंड रेवलेशन. और दूसरी तरफ हमारे पास कुरान और हदीस आ रही है, और कुरान और हदीस भी ऑब्वियसली वही से ही उतर रही है. और फिर ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं, और आपस में इंटरैक्ट करने के बाद, बिकॉज विदाउट रैशनैलिटी वी कैन नॉट गो ऑन अंडरस्टैंडिंग द रेवलेशन एज वेल. कुरान की एक आयत तो सीधी सी है, मगर बहुत सारी आयतें हैं जिनको मिला के जब आप कॉन्सेप्ट बनाते हैं, और कुरान सिर्फ आयतें और आई मीन कॉन्सेप्ट बताने के लिए नहीं आया हुआ. इट इज ऑब्वियसली देयर टू फॉर्मुलेट सिस्टम्स आउट ऑफ इट. तो अगर आपने कुरान से एक सिस्टम निकालना है तो आपको होल रेंज ऑफ रैशनैलिटी चाहिए, बिकॉज होल रेंज ऑफ रैशनैलिटी जिसमें प्रैक्टिकल रैशनैलिटी भी शामिल है, जिसे आप एक्सपीरियंस कहते हैं. बिकॉज विदाउट दैट यू कैन नॉट गो ऑन कंस्ट्रक्टिंग प्रैक्टिकल रियलिटी आउट ऑफ कुरान. कुरान की उन आयतों को अंडरस्टैंड करना, उनके दरमियान कनेक्शंस को डेवलप करना, उसके बाद
उसको अपने करंट कॉन्टेक्स्ट के साथ इंटरेक्शन में लेके आना, और उसके बाद एक ऐसी रियलिटी, एक ऐसी रियल सोल्यूशन को डेवलप करना जो उस दौर के लोगों के प्रॉब्लम्स को कुरानी उसूलों और मसलन इस्लामी उसूलों के तहत हल कर रहा हो। तो मतलब होल रेंज ऑफ रैशनैलिटीज इन्वॉल्व इन इट। सो इफ यू से कि कुरान में रैशनैलिटी हम नहीं लगाएंगे तो आई मीन मैं ये, फिर आप कुरान की आयतें पढ़ेंगे और समझेंगे और बात खत्म। वरना कोई तो होगा जो उनको एक्सप्लेन करेगा, और उसके बाद फिर उनमें से सिस्टम्स डेवलप करेगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट टाइम, योर टाइम। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको आप इज्तिहाद भी दूसरे लफ्जों में कहते हैं। अच्छा, तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि लिहाजा वही के नीचे ही दोनों चीजें ऑपरेट कर रही हैं। यानी एक साइंटिस्ट भी जब गौर व फिक्र कर रहा है तो उसके जहन में जो आइडियाज आ रहे हैं बिलाखिर वो कहीं से कस्ब करने की कोशिश कर रहा है। कुछ रियलिटी वो कुछ कुछ फैक्ट्स वो यहाँ से उठाता है, मगर अपने ब्रेन में जो न्यूरल कनेक्शंस डेवलप कर रहा होता है वो न्यूरल कनेक्शंस कहीं से बिलाखिर इंस्पायर हो रहे होते हैं, या दूसरे लफ्जों में गाइड हो रहे होते हैं। तो आयतुल्लाह जवादी हम ये कहते हैं कि ये जुल्म और ज्यादती है कि हमने नेचुरल साइंसेस को, इन उलूम को हमने वही के ताबे से निकाल दिया। जब हम इनको वही किताबें या वही तस्लीम नहीं करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि जो भी इनको हासिल कर रहा है वो ये क्लेम करेगा कि ये जो सारी चीजें हैं ये मेरा अपना नॉलेज है, मैंने खुद क्रिएट किया है। क्योंकि वो उसको खुदा किताबें समझ नहीं रहा, वही किताबें समझ ही नहीं रहा। अगर आप इसको, इन सारी उलूम को वही किताबें करार देंगे, उससे फायदा ये होगा कि आप अपने इल्म को वही किताबें करार देंगे। जो रिसर्च आप कर रहे हैं उसमें खुदा का शेयर बराबर होगा, प्लस यू विल नॉट गो ऑन क्लेमिंग ऑल द राइट्स ऑफ दैट नॉलेज, बल्कि आप यू विल बी हम्बल इनफ टू आई मीन टू एडमिट, टू एक्सेप्ट कि हाँ इसमें मेरी एफर्ट है, मगर खुदा का करम ना होता तो मैं यहाँ तक ना पहुंचता। ऑब्वियसली अगर वो चीज आपका आपका टोटल नहीं है तो यू आर नॉट टेकिंग द होल क्रेडिट ऑफ दैट थिंग, तो आप उसके यूज में भी आजाद नहीं है। जब आप उसका यूज करेंगे तो यू विल नॉट बी यूजिंग इन दी आई मीन अल्टीमेटली यू विल नॉट बी यूजिंग इनटू योर प्राइवेट इंटरेस्ट, बल्कि उसके साथ साथ यू विल बी सर्विंग द ह्यूमैनिटी एज वेल। और ये कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है, बट इट क्योंकि इमाम अली साहब फरमाते हैं कि हम, हमारी फिक्र हमारे इमाम में। सो कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। तभी हमारे पास मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ तहजीबें मौजूद हैं जो कि अपनी अपनी आइडियोलॉजी से इंस्पायर होती हैं और मेरिकल्स क्रिएट करती हैं। बस अब हम जब यूनिफाई करना चाह रहे हैं बिटवीन रैशनैलिटी एंड इंट्यूशन, जिसकी मैंने अभी बात की आपसे, तो इसमें सवाल ये पैदा होता है क्या रिलीजन गैब पर ईमान नहीं है? नहीं, परवरदिगार कुरान में वाज़ेह तौर पे फरमा रहे हैं कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना यूमिन, थोड़ा सा कंफ्यूज जो भूल गया, मगर ये है कि परवरदिगार कह रहे हैं कि ये उनके लिए हिदायत है जो गैब पर ईमान लेके आते हैं। तो गैब पर जो ईमान लेके आते हैं, तो ये अगर उनके लिए हिदायत है तो इसका मतलब ये है कि क्या हम गैब पर ईमान रखते हुए इस पे एतमाद करें, उसके बाद हम रिसर्च का दरवाजा बंद कर दें, जो कि अभी तक हमने किया हुआ है। मिसाल के तौर से, क्या आपने कभी कोई लॉन्गिट्यूडनल स्टडी देखी है कि मिसाल के तौर से कुरान ने जो जायदाद के तकसीम का तरीका बताया, आप उससे जायदाद को तकसीम करें, और 100 साल के ऊपर रिसर्च हो कुछ खानदानों के ऊपर कि उन्होंने एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज ने ब्रिटिश लॉ के मुताबिक तकसीम किया, और एक 100 साल 120 साल की लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हमारे पास है, दूसरा इस्लामी तरीके से तकसीम किया, तो उसके नतीजे में इंपेरिकली दोनों के काम में क्या नफा क्या नुकसान आया। सो हमने कभी ऐसी स्टडी नहीं की, हम कभी भी रिलीजन की बताई हुई चीजों पर रिसर्च नहीं करते। हालांकि हमें अगर यकीन है तो हमें उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि हमें इस बात का यकीन है कि ये सही है। तो जब आपको एक रास्ते का पता है कि ये सही है और इस पे मैं जाऊंगा तो मंजिल आगे है ही है, तो उस मुसाफिर के पाँव में ज्यादा जो है वो जुम्बिश होनी चाहिए मंजिल की जानिब, या उसके पाँव में कि जिसको पता ही नहीं है कि मैं एक अंधेरी गली में जा रहा हूँ, आगे कहाँ जाएगी। मगर अफसोस ये उल्टा हो गया। हमने इन रियलिटीज को जानने के बाद इस पर रिसर्च करना बंद कर दी कि हमें तो पता लग गया। परवरदिगार ने रियलिटीज हमें इसलिए नहीं बताई थी, हमें इसलिए बताई थी कि ईमान लाने वालों की ये जिम्मेदारी है कि वो इल्हाम और वही के जरिए तस्दीक शुदा रास्तों को अमल के जरिए से इंपेरिकली साबित करें, ताकि वो लोग जो गैब पर ईमान नहीं रखते वो भी इस्लाम पर ईमान ले आए, क्योंकि वो इंपेरिकल एविडेंस पे तो ईमान रखते हैं। So, being a natural scientist, or being from the field of biology, physics, or chemistry, or whatsoever it is, I mean, if it belongs to the natural sciences, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उन रियलिटीज को एम्पेरिकल एविडेंस और एम्पेरिकल एविडेंस या स्टेटिस्टिकल एविडेंस के साथ साबित करें, सो दैट ये सिस्टम ऐसे ही बनाया हुआ खुदा ने कि कुछ लोग हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं, गैब पर हमेशा कम लोग ईमान लाते हैं, और वो जो गैब पर ईमान लेके आते हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, और उनके ऊपर
ये 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 सवाल किया जाएगा उनके साथ, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक आयत पढ़ी और आयत की तिलावत हमने की कि परवरदिगार फरमा रहा था कि मैंने तुम्हें आंखें और तुम्हें तुम्हें मैंने बसारत समात दी, बसारत दी और कल्ब दिया, और इस पे तुमसे सवाल किया जाएगा। यानी अहले ईमान को ये सारी चीजें दी इसीलिए हैं ताकि वो एक्सप्लोर करें इन चीजों को और इनके एम्पिरिकल एविडेंसेस को क्रिएट करें, ताकि वो माइनॉरिटी जो गैब पर यकीन ले आई है वो मुकदमा बने उन एम्पेरिकल एविडेंसेस का, जिसके ऊपर मेजोरिटी भी इस्लाम की तरफ आ जाए। और ये मेरी और आपकी कसर है, ये मेरी और आपकी कसूर है, जिसकी वजह से आज तक हम ये इस्लाम को नहीं सही मानों में फैला सके और अभी तक हमारे इमाम पर्दे पर्दे गैबत में मौजूद हैं, क्योंकि बिलाखिर रियलिटी हमारे हाथ से बाकियों तक पहुंच नहीं रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, दिस वाज ऑल। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई एम अवेलेबल। ताकि अब जैन भाई बताइए, 10 हो चुके हैं, क्या हमारे पास सवाल जवाब का टाइम है या अ, अ, भी आप उसको करना हाँ, चाहें? मेरा ख्याल है अगर आप टाइम दे सकें तो इट विल बी सो काइंड ऑफ यू। और बच्चे अगर सवाल करना चाहें तो मैं ख्याल है हम थोड़ा सा टाइम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं प्लीज। ठीक है, मैं बिल्कुल, नो इशू। बहुत शुक्रिया बच्चों। सेशन इज ओपन फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये था कि जैसा कि आप भी जानते हैं कि अब नौजवान नस्ल की क्यूरियोसिटी बिल्कुल मर चुकी है। मतलब नौजवान नस्ल क्यूरियस है ही नहीं और उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है रिसर्च वगैरह पे। तो इस क्यूरियोसिटी को वापस कैसे जिंदा किया जाए? अच्छा, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये कहूंगा कि देखें, वी नीड टू डिग डाउन एंड डिग डीप, और वी हैव टू फाइंड आउट द रीजंस व्हाई दिस क्यूरियोसिटी इज ड्राइड अप फ्रॉम आवर यूथ। हम ये देखते हैं बच्चा जो पैदा होता है वो तो बहुत क्यूरियस होता है, तो आज ये किस जगह पहुंच गया। सो किरदार है हमारे कल्चर का, हमारे कवि चीज है और इंसान को फितरत पे पलटाया जा सकता है। लिहाजा अगर हमने इंसान को फितरत पे पलटाना है तो उसका तरीकाकार ये है कि उसे दोबारा से उस एनवायरनमेंट लेके जाए जहां से उसकी उस असली फितरत को जिला मिले। दोबारा उसे क्वेश्चंस के रील में लेके जाया जाए, उसे उससे क्वेश्चंस किए जाएं, उससे बैठकर इस मौजू पे काउंसलिंग की जाए एंड उसको इन्वायरमेंट दिया जाए ताकि वो क्यूरोसिटी उनके अंदर पैदा हो जाए। ये बहुत सादी सी बात है। एक बच्चे का आप ऑब्जर्वेशन करेंगे जिसके पीछे घर वाले खाना लेके हर वक्त फिरते रहते हैं, वो आगे आगे भागते रहते हैं, वो खाना नहीं खाता, एंड व्हेन यू लीव देम, तो जब उनको भूख लगती है वो खाना खा लेते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अगर वो घर वालों के साथ बैठ रहे हैं खाने की मेज पे, तो दे गो ऑन डेवलपिंग अ हैबिट टू हैव देयर मील्स ऑन टाइम, और वो एंजॉय करके खाते हैं। मेरे अपने 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। सो जो बड़े दोनों हैं उनको मैंने किसी और तरीके से ट्रीट किया, एंड देयर वो अब आज भी उनके पीछे भागना पड़ता है खाने के लिए। जो छोटे 3 हैं माशाल्लाह, उनको बेहतर तरीके से किया, तो आज वो खुद हमारे पीछे होते हैं और खुद से ही खाने पीने पे लगे रहते हैं। तो गुजारिश ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम, हमारी सोसाइटी इस तरह के काम करती है, और उसका तरीकाकार यही है कि स्टार्ट गिविंग देम द राइट एनवायरनमेंट, और उनको इस बारे में जब थोड़ा सा स्टिमुलाई मिलेगा तो उनकी फितरत दोबारा जाग जाएगी। जी, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। हमारे पास एक कमेंट आया हुआ है जो आपको बहुत पसंद आएगा, इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ आपके लिए। कन्वेंशनल स्कूल इज अ प्लेस वेयर फितरा इज किल्ड डिलिबरेटली। तो अच्छा, जैन भाई को मालूम है कि ये मेरी दुखती रह गई, लिहाजा उन्होंने इसको यानी आप समझ लें कि मेरी जो है ना वो इस लेक्चर की कीमत वसूल होगी इस जुमले से। कमेंट्स में एक और क्वेश्चन है। इफ यू अप्लाई द प्रैक्टिस ऑफ मल्टी लेयर्ड रियलिटी टू आवर ओन बिलीव्स, इज द फ्लिप साइड दैट वी माइट लूज ट्रैक ऑफ द रियलिटी पॉसिबल? इफ यस, देन हाउ टू सेव आवरसेल्व्स? देखिए, चीजों को ना हम रिड्यूस करने की तरफ ना जाएं। हमारे अंदर एक अनफॉर्चुनेटली एक आदत बन जाती है कि हम कॉम्प्लेक्स करने से चीजों को परेशान होते हैं और हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और वी ट्राई टू रिड्यूस देम इन वन और टू कॉन्सेप्ट्स ताकि हम उसे होल्ड कर सकें। सो डोंट बॉदर अबाउट दिस थिंग। आप चीजों को एज लॉन्ग एज आप उसकी कनेक्टिविटी को बाकी रखें कि
वहदत और कसरत दोनों की कनेक्टिविटी को बाकी रखें, और आपके लिए कॉन्सेप्चुअल फर्क ना हो तो इनको मल्टीप्लिसिट होने दें। इनको यानी मल्टीप्लिसिटी को मोनोप्लिसिटी की तरफ लाने के लिए ना हमें एफर्ट करनी पड़ती है, और इस एफर्ट ये एफर्ट ही हमारी कमाई है जो इस दुनिया के अंदर कमाई है। ये अलबत्ता खुद एक मौजू अलग से है, मगर हमें इस पे एफर्ट करनी पड़ती है ताकि हम इनको यानी मिसाल के तौर से सुस्ती में सबको मजा आता है, मेहनत में किसी किसी को मजा आता है। तो जब हम मेहनत के अंदर हमें सुस्ती से ज्यादा लज्जत आना शुरू हो जाती है, और ये प्रैक्टिस रिक्वायर करती है, तो वो काम हमारे लिए इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाता है। वो फिर हमारे उसके अंदर यूनिफिकेशन आ जाती है, वो उसमें हमारे अहदाफ और काम और हिम्मत और हौसला और हर चीज जो है वो यूनिफाई होकर आ जाती है। सो डोंट बदर अबाउट दिस थिंग। आप इस तरह की फियर्स अपने जहन में ना लाएं। आप अपने आप को यू जस्ट ओपन अप टू द रियलिटीज। और बल्कि मैं ये कहूंगा बहुत आसान सी बात है वो। आयतुल्लाह बहजत से किसी ने पूछा कि इरफान की मंजिल को कैसे पाएं, तो आपने फरमाया जो जानते हो उस पर अमल करो, जो नहीं जानते खुदा खुद बता देगा। तो लेट इट गो। आप अपनी इंक्वायरी को मत रखें, रोके, लेट इट गो। परवरदिगार आपकी मदद करेगा। आपके पास मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, एफर्ट करने का जज्बा होना चाहिए, रिसर्च करने का जज्बा होना चाहिए। सो गॉड विल नॉट लेट यू स्ट्रे। जी, थैंक यू। मेरा एक सवाल था कि सपोज एक बंदा चाहता है कि वो आज से शुरू करे अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा करने के लिए, तो फिर वो क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स यूज करेगा कि 3-4 स्टेप्स जो वो यूज करे और उसकी क्यूरियोसिटी 1 महीने बाद जिंदा हो जाए? अच्छा, 1 महीने की गारंटी तो मैं नहीं दे सकता। अलबत्ता ये है कि मतलब इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, अपेरेंटली उसको ये करना चाहिए कि वो क्रिटिकल थिंकिंग की प्रैक्टिस करे, क्रिटिकल थिंकिंग की एक्सरसाइजेस को निकाले ऑनलाइन। और आजकल तो चैट जीपीटी वगैरह बहुत अच्छी हैं, आपके लेवल को गेज कर लेगा, आपको लेवल के मुताबिक एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस बना के देगा। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ जो है वो परवरदिगार से राब्ते को मजबूत किया जाए, क्योंकि जब इंसान परवरदिगार से राब्ते को मजबूत करता है तो उसकी रूह कवी होती है, और रूह कवी होगी तो खुद ब खुद उसकी जो कुव्वत आकिला है वो कवी हो जाएगी, और वो इंसान के अंदर क्यूरोसिटी का समंदर जो है वो जोश मारना शुरू कर देगा। और दूसरी चीज वही अपेरेंटली हमारे दिमाग की है, उसको जब आप रिगरस क्रिटिकल थिंकिंग की एक्टिविटीज से गुजारेंगे तो वो खुद ब खुद जो है वो एक अच्छा क्रिटिकल थिंकर बनना शुरू हो जाएगा। जी। एक और सवाल जो कमेंट्स में है, हाउ शुड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ, द प्रैक्टिकल लैंग्वेज ऑफ गॉड, बी डिलीवर्ड एंड एक्सप्रेस टू द यूथ? मेरे ख्याल में मैथ्स मेरी फील्ड नहीं है, जैन भाई शायद इसका बेहतर जवाब दे सकेंगे, बट चूंकि मुझसे सवाल किया है तो मैं जवाब दे देता हूँ। ना काफी जवाब हो तो इंशाल्लाह जैन भाई से रिक्वेस्ट होगी वो इसमें ऐड ऑन करें। देखिए, परवरदिगार के कॉन्सेप्ट और दीन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ब्रॉडर करने की जरूरत है। हम इंसान परवरदिगार की कुर्बत हासिल करना चाहते हैं ना। हम हर हर इबादत के अंदर ये नियत करते हैं कुर्बत इल्लल्लाह। कुर्बत इल्लल्लाह का मतलब ये है कि हम खुदा से करीब हो जाएं। खुदा कहीं बैठा हुआ तो है नहीं माज़अल्लाह कि जिसके करीब हमने हो जाना है, 2 कदम चले। हाँ, सिफात के जरिए हम खुदावंद करीम को जानते हैं। तो सिफात खुदावंदी की झलक को अपने वजूद के अंदर, अपनी जात के अंदर मुस्तहकम करना जो है वो उस नूर इलाही से हमें करीब कर देता है। अब अगर हम बच्चों को ये समझा देंगे परवरदिगार खालिक है और हमें भी खालिकियत की हिस्स को अपने अंदर बेदार करना है, और परवरदिगार मैथ्स के जरिए से खल्क करता है चीजों को, और इंसान मैथ्स के जरिए जब नई चीजें क्रिएट करेगा, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो मेटाफिजिकल हो, तो वो उसकी रूह को तकवीत देंगी और उसे इसमें मानवियत और रूहानियत फील होगी कि मैं खुदावंद करीम के करीब हुआ हूँ। इस तरह हम यूथ को मोटिवेट कर सकते हैं। खुद एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बने। जो भी मैथ्स की फील्ड के लोग हैं, जो नहीं है, उन्हें भी सीखने की जरूरत है। और हम जब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनेंगे और इस तरह से हमारी हमारा मोटिव, अल्टीमेट मोटिव ये हो जाएगा कि हमने क्रिएशन को अपने वजूद में मैथ्स के जरिए से बढ़ाना है ताकि हम गुरबत खुदाबंदी हासिल कर सकें। तो ये खुद यूथ के लिए एक मोटिवेशन का सबब होगा, क्योंकि हमारी रूह के अंदर एक जरा भी प्योरिटी का क्रिएट होता है या गुरबत खुदाबंदी का क्रिएट होता है तो वो उसमें कशिश है। परवरदिगार फरमाता है तुम 1 कदम मेरी तरफ आओ, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ आऊंगा। मतलब यही है कि हम ये खूबसूरती है, ये प्योरिटी है। जिस तरह खूबसूरती इंसान को अट्रैक्ट करती है, बाग में एक अच्छा फूल है, खुद ब खुद कदम उसकी तरफ चले जाते हैं। इसी तरह इल्म की दुनिया में भी जो अच्छी रियलिटीज हम क्रिएट करते हैं वो खुदावंद करीम से हमें करीब करती हैं। क्यों? क्योंकि वो हुस्न होती है, खूबसूरती होती है, और हम उसकी तरफ लपक के जाते हैं तो उनकी अपनी एक अट्रैक्शन हमें अपनी तरफ खींच लेती है, यानी खुदावंद करीम हमारी तरफ 10 कदम आ जाता है। तो मेरे जहन में जो एक्सप्लेनेशन थी बता दी मैंने। अगर इसमें कोई खामी बताई हो तो जैन भाई मौजूद है, ऐसे सही करेंगे। जी। नहीं, बहुत अच्छा है माशाल्लाह।
जी, एक और क्वेश्चन आया, अगर आप देख सकते हैं कमेंट में, तो हम मेरे जी, ख्याल मैंने इसको लास्ट मैंने देख क्वेश्चन लिया। कंसिडर करते हैं। मैंने थैंक देख यू। लिया। अच्छा, इसमें देखें, ये हमारे यहाँ एक परेशानी की बात है। कुछ महाराजा के बारे में कहा जाता है कि वो मुफ्तान के बारे में कि वो इस किस्म का कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिक हराम रखते हैं कि अगर चमचे और कांटे भी आपने आपस में बज रहे हो तो ये हराम हो जाता है। मगर इसके ऊपर मैंने एक एक बड़ी मुफस्सल किताब पढ़ी थी शहीद बहिश्ती की, जिसमें उन्होंने इज्तिहादी नज़र से इसका एनालिसिस किया। तो मेरे 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 लिए उस किताब के बाद काफ़ी क्लैरिटी आ गई थी। देखें, म्यूजिक जो है वो एक सादे कागज़ की तरह है, जो इंसान के इमोशंस के साथ डील करता है, और इट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप नेगेटिव इमोशंस को उभारते हैं या पॉजिटिव इमोशंस को उभारते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है कि ये गलत होगा या सही होगा। लिखाई भी इसी तरह है। अगर आप उससे पाकीज़ा चीज़ लिखेंगे तो वही कागज़ और वही स्याही मुतबरक हो जाएगी। उससे अगर आप कुछ आप शैतानी चीज़ें लिखेंगे तो वही चीज़ नजिस और नापाक हो जाएगी। इसी तरह म्यूजिक भी है। अब इसका डिसीजन कौन करेगा कि ये आपके वजूद के अंदर, क्योंकि फिर मैंने बताया कि यहाँ पे सोशल रियलिटीज है, इंसान है और हर इंसान का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। तो यहाँ कौन फैसला करेगा? तो फिर वो कहते हैं जी मुकल्लिफ यहाँ खुद फैसला करेगा कि ये उसके अंदर पॉजिटिव जज्बात को जन्म दे रही है या नेगेटिव जज्बात को जन्म दे रही है। सो अगर हम ये कह रहे हैं कि ऑल टुगेदर म्यूजिक हराम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपका आपके यूज पे है कि आप उसे कैसे यूज कर रहे हैं। मुख्तलिफ टोन्स मुख्तलिफ इमोशंस को उभारती हैं मुख्तलिफ लोगों के अंदर, और ये लोगों को खुद फैसला करना है, ताकि मुकल्लिफ खुद फैसला कर सके कि ये उसको भला लग रहा है या उसके लिए फायदा है या नुकसान है। जी। अच्छा, ये किसने कह दिया कि मोमिन को क्यूरोसिटी नहीं होती? ये आज तक मेरे उससे नहीं गुजरा। मगर हाँ, आप ये कहें कि मोमिन के लिए तशवीश नहीं होती, मोमिन घबराहट का शिकार नहीं होता, मोमिन अचानक बहुत ज्यादा हैरत का शिकार नहीं होता। तो हैरत तो मैं फिर भी नहीं कहूंगा, क्योंकि देखें मोमिन हमेशा मुश्ताक होता है नई से नई हकीकतें देखने का। और वो यानी शहादत की तरफ भी क्यों मुश्ताक होता है? क्योंकि शहादत बहुत सारी हकीकतों को इंसान, बहुत सारे पर्दों को इंसान के हाथ आंखों के आगे से हटा देता है, और उसे बहुत सारी हकीकतें, बहुत सी आया नजर आती हैं। वो शख्सियात जिससे वो मतलब इश्क की हद तक जो है वो लगाव रखता है, वो शख्सियात की ज़ियारत और वो सारी चीज़ें, तो ये एक मोमिन के लिए बहुत ही ज़्यादा राहत और फरहत बख्श होती हैं। मगर ये है कि ये बात भी सही है कि मोमिन अपने वक़ार को बाकी रखता है। वो बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी बातों पे गम-अंगेज़ हो जाना, परेशान हो जाना या उछलना-कूदना, ये उसकी तबीयत में नहीं होता। मगर मैं ऑल टुगेदर इस बात से एग्री नहीं करूँगा। अलबत्ता अगर कोई सॉलिड किसी के पास कोई इसके लिए दलील हो तो वो पेश कर सकते हैं, वरना ऑल टुगेदर मैं इस बात से एग्री नहीं करूँगा। जी। मेरा ख्याल ये जन और गुमान वाली जो रवायत है, उसको शायद इससे मिलाया जा रहा है क्वेश्चन में, तो शायद मेरा ख्याल है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। आप ही वजाहत करते हैं, बेहतर है। जी, मैं वही अर्ज़ करना चाह रहा था कि वो उन उन मवारिद में तो इस बात को का इतलाक हो सकता है, मगर मोमिन के अंदर क्यूरोसिटी नहीं होती, तो ये बिल्कुल ऑपोज़िट है। यानी अगर हम देखें थ्योरेटिकली स्पीकिंग, मोमिन की रूह सबसे ज़्यादा कवी होती है, उसकी आक़िला सबसे ज़्यादा मज़बूत होगी। चूँकि वो एफ़र्ट भी बहुत ज़्यादा पुट इन करता है, तो उसका दिमाग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके अंदर उससे ज़्यादा क्यूरोसिटी तो किसी में होनी ही नहीं चाहिए। और इमाम अली अलैहिस्सलाम का कौल भी है जो इसकी सपोर्ट में आ जाता है कि बदतरीन इल्म वो है जो ज़हन में सवाल पैदा ना करे। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम के नज़दीक बदतरीन इल्म वो है जो ज़हन में सवाल पैदा नहीं करता। तो इससे हमें पता लगता है कि आला तरीन इल्म और मोमिन की खसलत और खुसूसियत यही है कि उसके ज़हन में सवाल उठते रहते हैं। जी। ठीक है, मेरा ख्याल है हम इसको कंक्लूड करते हैं। बहुत वक्त लिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। समाना, मेरा ख्याल है आप ही कंक्लूड कीजिए बेटा इसको। All right. Thank you so much, Dr. Raza, for your valuable time and insights. It was truly enlightening, and thanks to all the participants for joining. Inshallah, we'll keep learning and growing together. Thank you so much. जी, थैंक यू वेरी मच फॉर यू ऑल फॉर हैविंग मी हियर इन दिस सेशन, और आप लोगों ने इतना बर्दाश्त किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मेरा ख्याल है अब हमें प्रैक्टिकल रेल्म ऑफ रिसर्च के लिए एक आध मरतबा और आपको जहमत देना पड़ेगी, फिर हम आगे स्पेसिफिक फील्ड में डाइवर्ज कर लेंगे इसको। जी, इंशाल्लाह अगर टॉपिक भी साथ में हुआ तो ज़रूर हाजिर होना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।